Hello class, today I am going to teach about the subject Business Organization class 12 chapter 7 and its part first. In this video we will discuss about export trade, course of export trade transaction. In this chapter we have to discuss about the procedure of the export trade transaction. Uh, how much a procedure involved for a export trade. In the course of export, the goods are sent either by air or sea. However, sending goods by air is a bit expensive. Hence, only precious and less weighty goods are performed sending by airs. It is the policy of every country to encourage export trade for the reason that the more exporting, the move the more would be earning the foreign exchange. The exporter in course of the exporting trade has to follow certain procedure as following. It means that if any person doing any goods for doing exporting any goods from one country to another country, so the exporter have to choose the means of transport, and it is only possible by air and water, sea. But the goods are sent by air. It is a very expensive for the exporter, and only those goods can be sent who are the precious and less weighted. Generally, most of the goods are sent by the sea, and it can easily all the expenses related to the exported goods can easily bear by the exporter if the goods are sent by sea. So what are the procedure involved what are the procedure involved for exporting the goods by the exporter? The first is a receipt of the letter of inquiry. The exporter receive a letter or some telephonic message of inquiry. The exporter might himself has sent the catalog of his good to importers, and they may be making future inquiries about the goods mentioned in the catalog. लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्या होता है कि एक्सपोर्टर्स जो है उस चीज़ से रिलेटेड, उस गुड से रिलेटेड जो है वो इंक्वायरी लेता है, और उस ही इंक्वायरी के बेस वो इम्पोर्टर सेंड करता है एक्सपोर्टर्स को, और एक्सपोर्टर उसी इंक्वायरी के बेसिस पर सारे वर्क जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी इम्पोर्टर्स को चाहिए होती है वो एक्सपोर्टर सेंड करता है. इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिसिट ऑफ इंटेंट और ऑर्डर. जो भी ऑर्डर इम्पोर्टर करता है एक्सपोर्टर्स को, तो इम्पोर्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि वो अपने फॉरेन जो बायर्स है उसके पहली बार तो उसके पास रिसिट होना चाहिए उस इंटेंट की, उस ऑर्डर की, और उसमें सारी चीज़ मेंशन होता है कि कितनी क्वांटिटीज़ पर, किस रेट पर, किस टाइप का गुड्स और उसकी पैकिंग क्या होना चाहिए, सारी चीज़ उस इंटेंट और ऑर्डर पे मेंशन होता है. तो एक्सपोर्टर उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना वर्क करता है. सेकेंड पॉइंट है नेसेसरी इंक्वायरी. Before dispatching the goods, exporter makes necessary inquiry about his customer. He should either obtain guarantee for payment and ask the importer to open a letter of credit in his favor. It is not an easy work to export any goods from one country to another country, and the exporter have no information about the importer. What types of importer and इसकी पेमेंट सिस्टम क्या है, उसके मतलब कोई भी गारंटी नहीं होती अननोन इंसान के बारे में. तो एक्सपोर्टर जो है सबसे पहले उसके वो क्या होता है कि वो क्या करता है कि इम्पोर्टर की पेमेंट की गारंटी लेता है, या तो फिर लेटर ऑफ क्रेडिट अपने फेवर में ले लेता है, तब जा कर के वो आगे का वर्क प्रोसीजर करता है. क्योंकि गुड्स को डिस्पैच करके गुड्स ऑर्डर हो गया, और ऑर्डर के बेसिस पर गुड जो है का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया. अब गुड्स को भेजना है दूसरी कंट्री में, तो इम्पोर्टर पहले पूरी इंक्वायरी लेता है अपने इम्पोर्टर के बारे में. एक्सपोर्टर पूरी इंक्वायरी अपने इम्पोर्टर के बारे में लेता है, उसकी पेमेंट की गारंटी लेता है, या तो फिर उससे पूछता है कि जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट हो वो उसके फेवर में हो.
थर्ड पॉइंट है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इंपोर्ट ट्रेड के बारे में डिस्कस किया कि इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस ज़रूरी है, तो उसी तरह से एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर्स के पास लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। और वो लाइसेंस जो है वो इशूड होगा कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है या तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको इशू करता है और एक वैलिड डेट तक होती है। फोर्थ पॉइंट है फुलफिलमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट। अब फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा जो 1999 में इसको इस्टेब्लिश ये एक्ट बना। इस एक्ट के अंदर जो है वो पेमेंट सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज के पेमेंट सिस्टम में के बारे में डिस्कस किया गया है और इस एक्ट में ही ये इस चीज़ के बारे में डिस्कस, फॉरेन जो बैंक है उसके डेवलपमेंट में, उसको प्रमोशन के बारे में डिस्कस किया गया और इसमें फॉरेन एक्सचेंज के पेमेंट के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो इस एक्ट के तहत द एक्सपोर्टर हैज़ टू डिक्लेयर विद द कस्टम अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद a prescribed period. Then exporter would surrender a specific amount of foreign exchange earned by the exporter. तो जो भी जिस भी इम्पोर्टर ने जो मनी दिया उसको अपने करेंसी में लेना, पहली चीज़ है कि उसकी परमिशन लेना, फिर उसके बाद उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट कराना। ये सारी चीज़ जो है फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट है फेमा के एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है डिमांडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्लास में भी डिस्कस किया है और जो है इस पर एक वीडियो भी है, वीडियो में इसको समझाया भी गया है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। जो भी फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत होती है और इन ऑर्डर टू बी सेटिस्फाइड विद द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इम्पोर्टर द एक्सपोर्टर डिमांड अ लेटर ऑफ क्रेडिट। देखो पहले एक्सपोर्टर को गारंटी चाहिए कि जो भी गुड्स वो डिस्पैच करके देगा तो उसको जो है उसके पेमेंट में क्या गारंटी है, तो वो क्रेडिट वर्दीनेस पहली सबसे चीज़ होता है। इम्पोर्टर का क्रेडिट वर्दीनेस से सेटिस्फाइड होता है, उसके बाद वो डिमांड करता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। द इम्पोर्टर हैज़ टू गेट इट from a bank having the branches in India also. The letter of credit is demanded by the exporter to safeguard his position. ये हमारे एक्सपोर्टर डिमांड करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट का, वो किस पर्पज़ से, वो अपने पोजीशन को सेफगार्ड करते हैं, एकदम सिक्योरिटी हो कि हाँ जो हमने गुड्स सेंड करेंगे जो उस पर हमें पेमेंट मिलेगा। 6 पॉइंट है सिक्योरिंग ऑफ शिपिंग ऑर्डर। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड विद द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ the importer, the exporter make arrangement of goods for shipping. For this purpose, he has to enter the agreement with shipping company. Application contain detail regarding goods and probable dates of shipping and port of the destination. तो ये सारी इम्पोर्टर क्या है कि अब उसको गुड्स को डिस्पैच करना है। जब वो एक सेटिस्फाइड हो गया इम्पोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस से, तो वो अब उसको गुड्स को शिप करना है, तो सबसे पहले वो शिपिंग कंपनी से एग्रीमेंट करता है और जितना भी उससे रिलेटेड जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन शिपिंग कंपनी को देना होता है, लेना होता है, कहाँ तक पहुँचाना है ये गुड्स, सारी चीज़ की डिटेल लेता है। फिर इस पर प्रॉपर एक एग्रीमेंट किया जाता है और इस पर क्या चार्जेस होंगे, कितने पार्ट चाहिए शिप के, पूरी शिप को तुमको हायर करना है, कितनी क्वांटिटी इसमें गुड्स होना है, ये सारी चीज़ डिस्कस होता है। 7 पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पेमेंट इज मेड बाय द बायर इन द करेंसी ऑफ द कंट्री ऑफ द बायर। जो भी पेमेंट होता है वो बायर की करेंसी में हुआ। द रेट एट विच द करेंसी ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री विल बी कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री इज नोन एज एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पर आता है कि जिस टाइम पर ऑर्डर किया गया उस टाइम का रेट कुछ और था, जैसे $1 इज इक्वल टू आज के टाइम पर 74 रुपीज़ है। तो मान लिया कि आज हमने ऑर्डर किया 74 रुपीज़ के रेट से। अब जब तक में गुड डिस्पैच होगा, पेमेंट हो रहा है, ये सब सिस्टम प्रोसीजर में है, हो सकता हो कि हम जो डॉलर की वैल्यू वो बढ़ जाए, 74 की जगह पर 78 हो जाए और हमारी वैल्यू डिक्रीज हो गई। मतलब कि अब इसमें क्या है कि एक्सपोर्टर को लॉस होगा, क्योंकि जब पेमेंट का टाइम होगा तो उस टाइम पर करेंसी बढ़ गई, मतलब कि
74 से 78 रुपीज़ हो गई। अब मगर जब ऑर्डर हुआ था उस टाइम पर 74 रुपीज़ थी। तो या तो फिर उसका अपोजिट भी हो सकता है कि 74 ऑर्डर के टाइम पर है, हो सकता हो कि 3 महीने के बाद जब हम पेमेंट वो कर रहा हो तो 72 रुपीज़ हो गई हो। तो इस पे जो है लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टर जो है वो अपना एक रेट फिक्स कर लेता है। इस पे भी बहुत सारे मतलब इंश्योरेंस कंपनी वर्क करती है। द रेट एट विच द करेंसी ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री विल बी कन्वर्ट इनटू द करेंसी ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो उसी रेट पर मतलब कि जैसे $1 इज इक्वल टू 74 रुपीज़ है, तो उसी वही चीज़ होगा, जो रेट होगा उसी रेट को कहा जाता है एक्सचेंज रेट। इट मे बी सब्जेक्टेड टू विथ फ्लैक्चुएशन। ये जो होता है एक फ्लैक्चुएशन का सब्जेक्ट होता है, तो इसको फिक्स करना पड़ता है कि हाँ सिचुएशन अप हो गई या डाउन हो गई, डॉलर की वैल्यू अप हो गई या डाउन हो गई, मगर हम तुम्हें 74 ही रुपीज़ से लेंगे, चाहे अभी ऑर्डर का टाइम हो या पेमेंट का टाइम हो। तो इसको फिक्सेशन करना पड़ता है। 8 पॉइंट है कलेक्शन ऑफ गुड्स। It is necessary only when the goods are to be exported by the exporting commission agent. The exporting commission agent are specified in such purchases and have thorough knowledge of the whereabout of commodities of goods क्वांटिटी एट अ चीपर प्राइस। अब यहाँ पे एक्सपोर्टर की ड्यूटी क्या हो जाएगी कि वो गुड्स को कलेक्ट करेगा, क्योंकि ऑर्डर हो गया, पेमेंट हो गया, और सारे जो प्रोसीजर है गुड्स को कलेक्शन कैसे करेगा। हो सकता हो वो एक एजेंट को हायर कर ले कमीशन के बेसिस पर, और फिर जैसा डिमांड किया गया, जैसे ऑर्डर में लिखा हुआ, उसी हिसाब से एक अच्छी क्वालिटी में अच्छी पर रेट पर गुड्स को कलेक्ट किया जाता है। पैकिंग एंड मार्किंग। पैकिंग और मार्किंग जो है वो जो इंस्ट्रक्शन इंडेंट में दिया गया हो, ऑर्डर में दिया गया होगा, तो इम्पोर्टर उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, क्योंकि जो गुड्स है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करना है। तो उस हिसाब से पैकिंग का पूरी तरह से माइंड में रख करके, डिस्टेंस को माइंड में रख करके पैकिंग किया जाता है। और ये थोड़ा बहुत अमाउंट में नहीं होता, क्वांटिटी में बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में होता है, इसलिए पैकिंग भी उसका उसी पर्पज़ से होता है। 10 पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉरवर्डिंग एजेंट। फॉरवर्डिंग एजेंट कौन अपॉइंट करता है? ये हमारे एक्सपोर्टर अपॉइंट करते हैं। और while dispatching the goods, the importer appoint a forwarding agent. The agent will perform all the necessary work on his behalf in consideration of some commission. फॉरवर्डिंग एजेंट जो है वो जो है अपॉइंट करते हैं, एक्सपोर्टर अपॉइंट करते हैं फॉरवर्डिंग एजेंट्स को, और उनका क्या वर्क होता है, कुछ जितना भी वर्क तब द एजेंट विल परफॉर्म ऑल नेसेसरी वर्क ऑन हिज बिहाफ इन द कंसिडरेशन ऑफ कमीशन। जैसे कमीशन के बेसिस पे वो काम करते हैं, और जो उनको डायरेक्शन दिया जाता है, जो हमारे एक्सपोर्टर कहते हैं, और एक्सपोर्टर उसी को कहेंगे जो हमारे इम्पोर्टर्स ने डायरेक्शन दिया होगा, उसी को फॉलो करते हुए करेंगे। तो अपॉइंटमेंट होता है। अब उस 11th पॉइंट क्या है, फॉर्मेलिटीज़ बाय द फॉरवर्डिंग एजेंट। फॉरवर्डिंग एजेंट की क्या फॉर्मेलिटीज़ है? द फॉर्मेलिटीज़ विच आर टू बी फुलफिल बाय फॉरवर्डिंग एजेंट। फर्स्ट इज अ चार्टर पार्टी। चार्टर पार्टी इस पॉइंट पर भी डिस्कस कर चुके हैं हम क्लास में। ये क्या है, चार्टर पार्टी होता क्या है? व्हेन द एजेंट टेक द होल ऑफ द शिप और ओनली पार्ट ऑफ द शिप ऑन हायर एंड एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद शिपिंग कंपनी। यहाँ पे शिपिंग कंपनी से जो एजेंट एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो कितना पार्ट उसकी शिप का हायर करेगा। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड चार्टर पार्टी। द रिसिट इज गिवन फॉर द लोडिंग ऑफ गुड ऑन द शिप। इन द केस इट इज जस्ट गुड रिसिट। और ये रिसिट तभी दी जाती है जब गुड्स लोड हो जाता है या लोड किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है शिपिंग बिल्स। द एजेंट प्रिपेयर शिपिंग बिल इन ट्रिप्लिकेट। एजेंट जो है 3 कॉपी जो है शिपिंग बिल की प्रिपेयर करता है। कॉपीज ऑफ द बिल आर सबमिटेड टू द कस्टम हाउसेस। और उसमें से एक कॉपी जो है वो कस्टम हाउसेस में सबमिट होती है। इट कंटेन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स रिगार्डिंग द गुड्स एंड the custom office scrutinizes and passes an order that the good mentioned therein can be exported. फिर कस्टम अथॉरिटीज़ क्या करती है कि जो भी गुड्स मेंशन हुआ है ऑर्डर में उसी के हिसाब से हो रहा है और ये एक्सपोर्ट होने के लिए है, तो वो एक शिपिंग बिल ये होगा। इसका वर्क ये है। पेमेंट ऑफ द ड्यूक ड्यूज़ का भी पेमेंट होता है। ड्यूक चालान दिया जाता है जहाँ पे जिस एरिया में ये गुड्स आफ्टर पेइंग द एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड शिपिंग ड्यूज द फॉरवर्डिंग एजेंट मेक अरेंजमेंट फॉर कैरिंग द गुड्स टू द डक। अब जब
मतलब कि एक क्या हो गया कि गुड्स जो है एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पे हो गई, शिपिंग ड्यूज पे हो गया। अब उस गुड्स को हमको ला करके एक डक में रख देना। डक एक ऐसा एरिया होता है जो शिप के पास होता है। फिर वहाँ से डक अथॉरिटीज़ जो है वो डक चालान इशू करती है, उस पर वो पेमेंट लेगी, फ़ीस लेगी। तो उसको पेमेंट करने के बाद फाइनली डक चालान वो देगी और फिर बाकायदा उस पर साइन होती है। सारे वर्क होने के बाद ये इसका भी एक रिसिप्ट वो लोग रख लेते हैं। फॉरवर्डिंग एजेंट। फोर्थ पॉइंट है लोडिंग द गुड्स ऑन शिप। बिफोर द गुड्स आर एक्चुअली लोड, द कस्टम अथॉरिटीज हु आर एक्चुअली प्रेजेंट एट द डक and will inspect them to find out if there is anything on which the duty remain to be paid and there are the goods which are not mentioned in the shipping bill। तो यहाँ पर जो है जब गुड फाइनली शिप पर लोड होने लगता है तो कस्टम अथॉरिटीज़ जो वहाँ पे उस डक के पास प्रेजेंट होता है, इस चीज़ को इंस्पेक्ट करता है कि कोई ऐसी चीज़ जो नहीं है जो छूट चुकी हो, जिस पर पेड ड्यूटी नहीं लगी हुई हो, या जो कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसको मेंशन ना किया गया होगा शिपिंग बिल में। फिर फोर्थ पॉइंट है मेटा रिसिप्ट। मेटा रिसिप्ट जो है कैप्टन इशू करता है। आफ्टर इंस्पेक्टिंग द गुड will issue the meta receipt। It contains particulars like a quantity of the good, number of the package, condition of the पैकेज, सारी चीज़ इसमें मेंशन होती है। अगर सारी चीज़ मेंशन होती है तो कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो क्लीन मेटा रिसिप्ट इशू करता है। अगर कुछ भी कमी होती है तो वो फॉल्ट मेटा रिसिप्ट इशू करता है। फिफ्थ में बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग इसके बारे में भी हम लोग ने एक डिस्कस किया है क्लास में। द फॉरवर्डिंग एजेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द मेटा रिसिप्ट अप्रोचेज ऑफिस the office of the shipping company, the president of the meta receipt and get in exchange the documents called a bill of lading। On the payment of the freight and other dues, the shipping company issue bill of lading to triplicate। यहाँ पे गुड्स मतलब यहाँ पे बिल ऑफ लीडिंग किसके कॉन्ट्रैक्ट में होता है, किस शिपिंग कंपनी और जो एक्सपोर्टर इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसमें जो है वो सारी चीज़ में पेमेंट लिखा होगा, सारे इंफॉर्मेशन लिखी होगी और इसी को 3 कॉपी दी जाती है। जो एक जाती है एक शिपिंग कंपनी के पास होती है। द एजेंट fill in the form in the required number, deposit them in the office of the shipping company। Shipping company return the copy of the bill of lading duly signed by the proper authorities to the agent। फिर वहाँ पे शिपिंग कंपनी जो है उस पहले एक फॉर्म है जो एजेंट को पूरी तरह से फिल करना होता है। फिर उसके बाद जो है ये शिपिंग कंपनी को दिया जाता है। शिपिंग कंपनी इस पर साइन करती है अगर ये पूरी तरह से प्रॉपर होता है, और साइन करने में इसको एजेंट को रिटर्न करती है और एजेंट इसी को ही अपने एक्सपोर्टर को देता है। एक्सपोर्टर यही बिल ऑफ लीडिंग किसको सेंड करवाता है, इम्पोर्टर्स को। सेवेंथ पॉइंट है मैरिन इंश्योरेंस। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द गुड्स अगेंस्ट द मैरिन रिस्क, द फॉरवर्डिंग एजेंट विल गेट द गुड इंश्योर विद सम इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पे गुड्स बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में दूसरी कंट्री तक जाना होता है, वो भी सी के थ्रू। तो हो सकता हो बीच में कोई एक डिफ़िकल्टीज ना क्रिएट हो जाए, इसीलिए एक इंश्योरेंस कंपनी से एजेंट जो है वो इंश्योरेंस ले लेता है उस गुड्स का। अगर बाई चांस कोई भी रिस्क होता है तो वो आसानी से इंश्योरेंस कंपनी से फुलफिल कर लेगा। तो उस तरह के इंश्योरेंस को क्या कहा जाता है, मैरिन इंश्योरेंस। तो आई होप कि आप लोग सारे पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो इसके आगे के प्रोसीजर्स जो है समझाएंगे। थैंक यू।